Hello, friends, welcome back to Inside Learning. Today we'll be studying the sixth chapter for Standard 10th Geography. ठीक है, so ये chapter है population वाला chapter. So this chapter is all about maps. हर जगह आपको maps mark करने को भी आएगा इसमें काफ़ी, एंड मैप्स रीड करने के लिए भी इसमें काफ़ी आएंगे. ग्राफ्स, मैप्स, उसका ज़्यादा काम है इसमें. थ्योरी इज़ वेरी लेस, ना के बराबर है थ्योरी, मतलब है बट इट्स नॉट दैट मच. सो येस, मेन थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन फॉर दिस चैप्टर इज़ द मैप्स, द ग्राफ्स. ओके, कीप दैट इन माइंड. नाउ मैं इसमें थ्योरी पार्ट ही कवर करने वाली हूँ, एज यू नो. सो येस, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट क्योंकि इसमें थ्योरी तो ज़्यादा है नहीं, बट जितनी भी है हम आज कवर कर लेंगे. ओके, सो एज यू नो हमारा जोग्राफी जो है स्टैंडर्ड 10 का, इट्स ऑल अबाउट इंडिया एंड ब्राज़ील. सो उन्हीं दोनों देशों के बारे में बात हुई है आगे. सो येस, दैट्स व्हाट we are going to be talking about. So yes, let's just start with the reading and explanation. So population is an important resource of any country. The qualitative aspects of a population are important for a nation's economic and social progress. Yes, population is very important resource एक country के लिए, और basically quantity है वो चलेगा but quality should be good. So the qualitative aspects of population is very important for a nation's economic and social progress, right? Now let's move on to the geographical explanation. So India's population is around 121 crores according to the census of 2011. India is the second most populous country of the world in the world. India occupies only 2.41% of land area of the world, whereas it supports 17.5% of world's population. Its average population density is 382 persons per square kilometers as per 2011 census. So, in India, population is very unevenly distributed. Physiography, climate play an important role in the distribution of population. Due to the fertile land, plain land, and availability of water, human settlements have been established in these parts for many centuries. Due to farming, industries, and trade, the proportion of the population got concentrated in few places. For example, the northern plains of the country, Delhi, Kolkata, Mumbai, Pune, Bangalore, Chennai. On the contrary, in the mountains, hilly region, dry desert areas, dense forest areas, density is sparse because of inaccessibility, absence of facilities and tough life. ओके, मुझे समझ आ गया. अब मैं आपको समझाती हूँ. ओके, इट्स वेरी इजी. क्या कहा गया है? लुक एट द मैप, लुक एट द डॉटेड वाला मैप या फिर ये वाला, दोनों. इट्स वेरी क्लियर. ठीक है, हम ये वाला देख लेते हैं. चलो, सो बेसिकली क्या कहा गया है, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है. ओके, वी आर करंटली, एक्चुअली नॉट करंटली, ये बुक हमारी थोड़े पहले की है. सो एट दैट टाइम जब ये बुक पब्लिश हुई है, वी वर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट currently if you see, हम लोग नंबर 1 पे हैं. so India is basically now the first populous state in the whole world. but आपको जब एग्ज़ाम में आएगा, so आपको सेकेंड ही लिखना है बिकॉज दे आर गोइंग टू कंसिडर दिस. सो ठीक है, 121 करोड़ हमारा पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 वाला सेंसस. सो यू नो सेंसस क्या होता है? सेंसस इज बेसिकली अ सर्वे that is conducted after every 10 years. so yes, ये जैसे 1911 में हुआ होगा सेंसस, उसके बाद ये 2011 में हुआ है, 2021 में भी हुआ होगा, राइट? मे बी बिकॉज ऑफ कोविड शायद नहीं हुआ, बट या हुआ है इज़ व्हाट आई एज्यूम. सो येस, आफ्टर 10 years census is conducted. It's basically a survey कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं वो सब जब पूछने आते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, दैट्स कॉल्ड सर्वे, एंड उसी हिसाब से ये डेटा कहा गया है. सो येस, हम लोग जो लैंड कवर करते हैं आप देख सकते हो, इट्स ओनली 2.41% ऑफ लैंड, है ना? हम काफ़ी कम लैंड कवर करते हैं. and the population that stays there is 17.5
6%. सो यू कैन इमेजिन, मतलब इतनी सी कम जगह में कितने लोग हैं, राइट? अब देखो ये पॉपुलेशन डेंसिटी मैप है, ओके इसके अंदर जो डार्क रेड कलर में चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, दैट्स बेसिकली हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स, राइट? जो थोड़े लाइट हैं, दैट्स बेसिकली कम पॉपुलेटेड स्टेट. ओके सो नाउ ये देखो, ये जो रीजन है नॉर्दर्न रीजन, ये है ना नॉर्दर्न प्लेन्स वी कैन से, ये सब कितने ज़्यादा पॉपुलेटेड है. वेयर एज आप देख सकते हो ठंडी वाली जगह हमारा जम्मू कश्मीर, दैट्स नॉट सो पॉपुलेटेड. अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इट्स नॉट दैट पॉपुलेटेड, है ना. अगेन फिर आप देखोगे यहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं. साउथ में भी पॉपुलेशन इज़ हाई, है ना. सो बेसिकली पॉपुलेशन कहाँ कम है, नॉर्दर्न रीजन्स में पॉपुलेशन कम है. वाई? इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. सो आपको पता होगा पहले के ज़माने में भी, इवन आज हम कहाँ रहते हैं, वेयर एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल, राइट? हर एक नेचुरल रिसोर्सेज अगर पास में है तो इंसान वही रहता है. अब देखो पंजाब, हरियाणा, ये सारी जगह खेती वगैरह काफ़ी अच्छी होती है. यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज. सो इसीलिए यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, है ना. एंड आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या है, रिजिड टोपोग्राफी है. आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल जल्दी मिलेंगी. सो दैट्स वाई पीपल आर नॉट लिविंग देयर, है ना. ज़्यादा टफ लाइफ की वजह से लोग वहाँ नहीं रहते हैं. ठीक है, दैट वाज इट, बस इतना ही कहा गया था. अब हम देखेंगे अबाउट ब्राज़ील, है ना. देखो थियोरी पार्ट कितना कम है, इंडिया खत्म भी हो गया, अब ब्राज़ील के बारे में बताया गया है. सो यहाँ पे अगेन 2 मैप्स हैं, ठीक है. सो लेट्स जस्ट सी जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस एज वेल. ये मैप रीडिंग में आ सकता है. मैं बता दूँ, ये वाला मैप और ये वाला मैप, ब्राज़ील का ये वाला मैप, ये दोनों मैप रीडिंग के लिए आ सकता है. डॉट वाला मैं नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज डॉट वाला थोड़ा प्रिंटिंग हमेशा बोर्ड का भी एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स का भी इज़ नॉट सो गुड प्रिंटिंग मशीन. सो काफ़ी चीज़ें प्रॉपरली प्रिंट नहीं हो पाती है. सो डॉट वाले की इतनी गारंटी नहीं है. बट ये जो है ना कलर वाला, ये आ सकता है. हाँ, कलर्ड नहीं होगा, वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ही होगा, उसी में डार्क लाइट वो लोग ने किया होगा. आपको समझना है एंड आंसर करना है. डू दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली. मैंने तो आपको कहा है जितने भी मैप के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, डू इट. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फिक्स्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड इवन इन योर स्कूल्स, राइट? सो जस्ट डू दीज क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा तो आप कर ही लो. सो yes, let's move on to the geographical explanation. Brazil is the most populated country in the South American continent. South American continent में सबसे ज़्यादा populated country कौन सी है? ब्राज़ील है, with a population of around 19 crores. Okay, यहाँ 19 crores की population है. हमारे यहाँ कितनी है? 121 crores. ओके इनका सेंसस कब हुआ था? 2010 में हुआ था, हमारा 2011 में हुआ था. ओके इट रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड. दिस इज 5th इन द वर्ल्ड. करंट का मुझे ब्राज़ील का नहीं पता है. सो येस, लेट्स जस्ट फॉलो द टेक्स्ट बुक ओनली. 5th इन द वर्ल्ड. इट इज ऑल्सो द 5th in the world with respect to area. yes, ये population में भी 5th रैंक करता है, प्लस जो ये एरिया कवर करता है उसमें भी ये 5th ही रैंक करता है. ब्राज़ील ऑक्यूपाइज 5.6% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड. 5.6, हम लोग तो 2.41 समथिंग करते थे ऑक्यूपाई ना लैंड. देखो इसको ज़्यादा लैंड है, बट यहाँ लोग देखो कितने, एंड हैज़ 2.78 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन. बट हमारे यहाँ लोग कितने थे? 17 पॉइंट समथिंग थे, और यहाँ कितने कम है. सो मतलब आप समझ सकते हो यहाँ बहुत जगह है और लोग बहुत कम है. Therefore, the density of the population is around 23% per square kilometers. Very less, 23% per square kilometer. The distribution of population is very uneven in Brazil. Okay, यहाँ पे भी population की जो distribution है that's very uneven. The majority of Brazilians have concentrated within 300 kilometers of density of population is found. Okay, ज़्यादातर लोग, मैंने कहा
साउथ के जो कोस्ट में है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ ही रहते हैं, यहीं रहते हैं, ठीक है. On the other hand, the interior of the Amazon basin is very sparsely populated. Unfavorable climate, heavy rainfall, accessibility, and dense forest are the barriers to the development of the human settlements here. Therefore, the settlements occur only in few places in the Amazon River basin. The central and the western part of Brazil is less populated. The density of population in the highlands in Brazil is moderate. ओके, सो बेसिकली यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है, देखो, पे अटेंशन योर, मैप पे हमेशा ध्यान दिया करो जब भी थ्योरी पढ़ते हो. ओके, सो मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर एंड गेट थिंग्स मोर राइट. ओके, सो यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है आपके, है ना, दैट इज मॉडरेटली पॉपुलेटेड. Amazon रिवर के यहाँ कोई भी नहीं रहता, इट्स स्पार्सली पॉपुलेटेड. ओके, जस्ट कीप दैट इन माइंड, यही कहा गया है. एंड बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, एंड काफ़ी बार उठा भी है जब मैंने भी पेपर्स लिखे हैं. सो दैट्स दिस वन, वाई सेटलमेंट्स अकर ओनली इन फ्यू प्लेसेस इन द Amazon रिवर. आंसर इन ब्रीफ आ सकता है, आंसर इन डिटेल आ सकता है. रीजन्स यहाँ दिए गए हैं, अगेन just to refine more better, just to learn more better, you can go through your digest or master key, whatever you refer to, और उसमें से वो आंसर करो, because that can come in your exams, right? Now again, population composition, maps हैं, now sorry, graphs हैं, as you can see. हाँ, ये graphs आ सकते हैं, and they come as well. शायद से आया था बोर्ड एग्जाम में, if I'm not wrong, पता नहीं. बट येस, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, रीड द ग्राफ में ये आएगा. 6 क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपको आंसर करने पड़ेंगे. सो यस, इसका भी जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. The sex ratio of Brazil has been more than 1,000 since decades. Considering the sex ratio of Brazil, the number of women have considerably increased than men since 2001. In India, men outnumber women. In India, we see fluctuations in the sex ratio since few decades. There has been a slight increase in the sex ratio after 1991. So here you can see what is sex ratio. Yes, it is the number of females per 1,000 males, है ना. So यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है, यही बताया गया है बेसिकली. आंसर इन वन सेंटेंस वगैरह कैन कम. सो यस, दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट. ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बेसिकली आंसर इन वन सेंटेंस के लिए. ये देखो, एज एंड सेक्स पिरामिड यहाँ दिया है. So yes, this can again come for graph, right? Graph questions, this can come. Geographical explanation इतना कुछ है नहीं, but still I'll read. ठीक है, चलो. Okay, chalo, let's read. Considering the age of population, Brazil's population is getting slowly older. But in India, the situation is different. The proportion of youth in India is more. This means India has a higher working population. Again, यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, इंडिया इज अ यंग कंट्री. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है फॉर योर एग्जाम्स, कीप दैट इन माइंड. सो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है, दैट ब्राज़ील में काफ़ी बूढ़े लोग पाए जाते हैं. ओके, एंड इंडिया में यू विल फाइंड यूथ, यू विल फाइंड वर्किंग पॉपुलेशन. ओके, यही कहा गया है. Population growth rate. Okay, this can again come for your graph questions. The rate of growth of population has reduced considerably in Brazil. However, this is not the condition in India. From 2001 to 2011, India's population has increased by 18.2 crores. India's population growth rate was higher till 1971. Then this rate stabilized. The rate of population growth is now declining.
but the population is still growing. It is observed that in Brazil, the rate of growth is declining and Brazil's population may not increase in the next 2 decades. Okay, so Brazil की population growth rate देखो कितना decline हो रहा है. Where देखो कितना decline हो रहा है population growth rate Brazil का. But India is still up. यही कहा गया, ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है. ये ग्राफ वाले ही क्वेश्चंस हैं सारे, ये भी ऑब्जर्व एंड राइट द क्वेश्चंस वाले ग्राफ के. ठीक है, इसमें क्या है, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. यस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन लिव्स. बेसिकली कहाँ ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, है ना, वही कहा गया है और कुछ नहीं. मैक्सिमम लिविंग एज लोगों की यही कहा गया है. ठीक है, improvement in medical facilities, progress in medical field, access to nutritious food leads to an increase in average life expectancy. And most of the developing countries life expectancy is still less. जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि हमारा इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, सो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, अभी भी कम ही है. बट विथ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट्स इंक्रीजिंग. Right, then literacy rate is basically the percentage of people who are literate, वही कहा गया है. सो ये इसको देख के क्या समझ आ रहा है, दैट ब्राज़ील में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इंडिया में तो नहीं है. 72.2 है यहाँ, एंड योर आई कैन सी 92.6. सो बेसिकली इंडिया इज़ नॉट सो लिटरेट comparatively, it's not. सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ ब्राज़ील में लोग ज़्यादा लिटरेट है ना. अगेन डू यू नो में यहाँ लिखा है कुछ. दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. वैसे मैं बोलती हूँ डू यू नो इम्पॉर्टेंट होता है, बट ये वाला सच्ची में इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे. बट येस, चलो ये लास्ट लाइन पढ़ लो. द फर्स्ट सेंसस सर्वे ऑफ बोथ द कंट्रीज वॉज कैरिड आउट इन 1872. मुझे तो यही लाइन इम्पॉर्टेंट लग रही है, बाकी भी आप पढ़ लेना, ये वैसे इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं. सो यस, यर वी एंड द चैप्टर. बेसिकली ये चैप्टर में कुछ है नहीं. ये चैप्टर में क्या है, मैप्स है, ग्राफ्स है, वही आपको अच्छे से करने हैं. और जो थियोरी पार्ट है दैट्स इजी, आप आराम से कर सकते हो. सो आपको बस टेक्स्ट बुक रीड करनी है, आपके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से करने हैं, एंड मेक श्योर दैट यू फोकस मोर ऑन ग्राफ्स एंड मैप्स फॉर दिस चैप्टर. सो यस, यर वी एंड द चैप्टर. I hope that the chapter was easy to understand, and if there are any doubts, just put them in the comments below. I will try to solve it. And yes, if the video was helpful, don't forget to hit the like button. Subscribe to my channel if you have not already. And yes, I'll meet you very soon. Until then, goodbye.